Hello, welcome to YouTube channel of JPIT, Biyawani, Bihar Sharif, Nalanda. My name is Arvind Tiwari and I am preparing this video for you on your syllabus, that is Information Technology, Introduction to IT System. Before this, our Honorable Principal Sir has already uploaded about the computer system, Introduction to IT System. In that particular videos, he had discussed about the basics of computer, just like definition of computer, characteristics of computer and use of the computer. I will recall all those points again within 5 minutes and then we will move further to the components of the computer system. First of all, what is the computer? A computer is nothing but a man-made electronic device that basically performs 3 tasks. The first one is input. It takes input from the user, processes that input and gives result. Apart from these 3 tasks, a computer has the capacity to save or store all the data and information given by the user. Now, what is data and what is information? Data क्या होता है और information क्या होता है? Data होता है जो unprocessed data होते हैं, जो unprocessed facts होते हैं, they are known as data. For example, RAM is a data. 85.4, it is a data. Second semester, it is a data. Now, information, processed data and processed data are known as the information. Just like Ram scored 85% in his first term examination. Then you will now understand what is data and information. Data को simply अगर define कर दें, कुछ नहीं है, ये बस एक तरह का unprocessed fact है, जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है, जिसका कोई मतलब नहीं होता है. लेकिन अगर उसी का अगर मतलब निकाल दिया जाए, उसी को अगर सेंटेंस फॉर्मेशन कर दिया जाए तो एक इंफॉर्मेशन का रूप ले लेता है. ओके, नाउ अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, तो कंप्यूटर सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होता है? सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है स्पीड, सेकेंड होता है एक्यूरेसी, तीसरा होता है डिलीजेंस, चौथा होता है वर्सटाइल. These all are the characteristics of the computer system. Now, कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं, what are the applications of the computer, इसके बारे में हम डिस्कस थोड़ा करेंगे. तो कंप्यूटर सिस्टम कहाँ कहाँ यूज हो रहा है बेसिकली. सबसे पहला जो कंप्यूटर यूज हो रहा है, सबसे पहले कंप्यूटर यूज हो रहा है हमारे घरों में, होम, कॉलेजेस, स्कूल्स, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन एक्सेट्रा. These are the applications of the computer where computers are generally used. Apart from these uses, computers are also used in space research, science and technology. You can say at any place in the world nowadays we are using computer system. Now, coming to the point, in this video I am going to explain about the components of the computer system. Components of the computer system. A computer system is mainly made up of 2 components. A computer system is mainly made up of 2 components. The first one is hardware and second one is software. Now, what is hardware and what is software? हार्डवेयर क्या होता है कि जो भी फिजिकल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के, जैसे आपके हो गए मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, स्कैनर, प्रिंटर, दिस ऑल आर द हार्डवेयर्स. मतलब कि वैसे फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम जिसको छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, दे आर द हार्डवेयर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. वी कैन हियर इट इज डिफाइंड एज हार्डवेयर. द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम are known as the hardware part of the computer system. We can define hardware as those part of system which can be seen and touched, or tangible part of the computer system are known as the hardware. Further, hardware is categorized into 4 main categories and they are input device, processing device, output device and storage device. अब इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस जानने से पहले हमको ये जानना होगा कि इनपुट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, आउटपुट क्या होता है और स्टोरेज क्या होता है. इनपुट वो होता है जो कंप्यूटर सिस्टम में यूजर के द्वारा डेटा को इंटर किया जाता है, दे आर नोन एज द इनपुट, दे आर नोन एज द इनपुट डिवाइस. हियर इट इज इनपुट डिवाइस, इनपुट. हियर
input. The data or information entered by the user in the computer system is known as input in the computer system. मतलब कि जो कोई भी डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हम कंप्यूटर सिस्टम में इंटर करते हैं, किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन और किसी तरह का भी डेटा हो, उसको हम लोग इनपुट बोलते हैं. और जो डिवाइस हमको हेल्प करता है, जो डिवाइस यूजर्स को हेल्प करता है कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को इंटर करने के लिए, वैसे डिवाइसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस कहते हैं. जैसे देखो यहाँ पे इनपुट डिवाइस, द डिवाइस विच हेल्प्स यूजर टू इनपुट डेटा इन द कंप्यूटर सिस्टम इज known as input device. Popular input devices are used by the user to enter data in the computer are, first one is keyboard, mouse, scanner, joystick, light pen, microphone, optical mark reader, OMR sheet, magnetic character recognition and optical character reader. These all are the input devices and they are majorly used by the user in the computer system. जो सबसे मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस होता है वो होता है हमारा कीबोर्ड. जो सबसे ज़्यादा यूज होता है कंप्यूटर में यूजर के द्वारा इनपुट करने के लिए वो होता है क्या? कीबोर्ड. अब हम जानते हैं कीबोर्ड होता क्या है. कीबोर्ड in computer system is the most popular input device. It is used to enter data or information in the computer system. किसी तरह का भी डेटा को हमको राइट करना है, किसी भी तरह के डेटा को फीड करना है कंप्यूटर सिस्टम में, तो उसके लिए हम लोग बेसिकली कीबोर्ड का यूज करते हैं. कीबोर्ड होता क्या है? स्टैंडर्ड कीबोर्ड है मेनली 104 कीज. These keys are categorized into several categories and they are alphabetical keys. There are total 26 numbers of alphabetical keys in a keyboard. Number keys that is 0 to 9, function key F1 to F12, combination key Alt, Shift and Control. combination key होता है क्या? Alt, Shift और Control. These three are the combination key. For navigation key, arrow की जितने भी होते हैं there are 4 numbers of navigation key that is arrow key. Toggle keys क्या होते हैं? वैसे कीज कीबोर्ड के जो कि ऑन और ऑफ किया जा सके. Those keys of a keyboard that can be switched on or switched off, they are known as the toggle keys and they are caps lock, and num lock. These two are the toggle key and special character keys like window keys, function key, enter keys. These all are the special character keys. Now you have understand the keyboard. Now next one is types of keyboard. There are numerous types of keyboard depending upon the language and region used. Some of them are discussed below. QWERTY keyboard. This is the most popular common keyboard used by user in the whole world. It is the most common keyboard used in the modern times. It is popular even in those countries which do not use Latin alphabets. This keyboard is named after the first 6% in its top row of alphabetical buttons. Its popularity is such that some people think of it as the only available form of keyboard to use in computer system as input device. QWERTY कीबोर्ड क्या होता है कि ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कीबोर्ड होता है. हालांकि इसका पॉपुलरिटी इतना ज़्यादा है कि लोग समझते हैं कि दुनिया में जो सबसे सिर्फ QWERTY कीबोर्ड ही एग्जिस्ट करते हैं, अदर टाइप ऑफ कीबोर्ड एग्जिस्ट नहीं करते हैं. QWERTY का मतलब होता है जो अल्फ़ाबेटिकल अपर पार्ट होते हैं कंप्यूटर के. देखेंगे आप जो कीबोर्ड के अल्फ़ाबेटिकल, तो सबसे पहले जो स्टार्ट होता है QWERTY, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द QWERTY कीबोर्ड. ठीक है. दूसरा होता है AZERTY कीबोर्ड. इट इज़ द स्टैंडर्ड फ्रेंच कीबोर्ड डेवलप्ड एज एन अल्टरनेटिव टू द QWERTY लेआउट इन फ्रांस. फ्रांस में क्या किया गया? एक QWERTY के अल्टरनेटिव के रूप में, विकल्प के रूप में AZERTY कीबोर्ड का यूज किया जा रहा है. अपार्ट फ्रॉम फ्रांस, इट इज मेजरली यूज इन सम अदर यूरोपियन कंट्रीज ऑल्सो. Some countries have developed their own versions of keyboard just like QWERTY, AZERTY
also derives its name from the first 6 letter present in टॉप अल्फ़ाबेटिकल रो। जैसे क्वेरिटी में जो अल्फ़ाबेट के ऊपर में क्वेरिटी जो सबसे पहला की होता है QWERTY, उसी तरह से जो एजर्टी कीबोर्ड होते हैं उसका जो पहला रो होता है उसमें AZERTY की सबसे टॉप में होते हैं अल्फ़ाबेट के रूप में। अपार्ट फ्रॉम द प्लेसमेंट ऑफ द लेटर, QWERTY एंड एजर्टी कीबोर्ड्स ऑल्सो डिफर in other ways. For example, the AZERTY keyboard emphasis on accent which is most for writing European language like French. दोनों में डिफरेंस ज़्यादा यही है कि जो AZERTY कीबोर्ड होता है वो मेनली फ्रेंच लैंग्वेजेज, यूरोपियन लैंग्वेजेज यूज करने के लिए, राइट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये था दो पार्ट्स ऑफ द कीबोर्ड। इसमें हम लोग क्या क्या देखें, कीबोर्ड क्या होता है। कीबोर्ड इज नथिंग, अगर हम फिर से इसको रिवाइज करें तो कीबोर्ड इन कंप्यूटर सिस्टम इज द मोस्ट इनपुट डिवाइस, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला इनपुट डिवाइस, मोस्ट पॉपुलर इनपुट डिवाइस है। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंदर में लगभग 104 की होते हैं। एंड जो की होते हैं, सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा की होता है अल्फ़ाबेटिकल कीज होते हैं, नंबर्स की होते हैं, फंक्शन की होते हैं, कम्बिनेशन की होते हैं, नेविगेशन की होता है, टॉगल की होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर की होते हैं। अल्फ़ाबेटिकल की यानी E to Z तक जितने भी लेटर्स हैं दे आर नोन एज द अल्फ़ाबेटिकल कीज। नंबर्स की 0 to 9 नंबर्स प्रेजेंट ऑन द कीबोर्ड, दैट इज 0 to 9 आर द नंबर्स की। फंक्शन की क्या होता है, F1 से F12 तक फंक्शन की होता है। कॉम्बिनेशन की Alt Shift एंड कंट्रोल। नेविगेशन की जो एरो के कीबोर्ड में होता है उसको हम लोग नेविगेशन की बोलते हैं। टॉगल की क्या होता है, जो वैसा कीबोर्ड जो की स्विच ऑन और स्विच ऑफ किया जा सके, वैसे कीज को हम लोग टॉगल कीज बोलते हैं, जैसे कैप्स लॉक एंड नम लॉक। स्पेशल कैरेक्टर की क्या होता है, जैसे स्पेस बार हो गया, इंटर हो गया, बैक स्पेस हो गया, एंड हो गया, इंसर्ट हो गया, डिलीट हो गया, पॉज ब्रेक हो गया। These all are the, apart from that above keys, the other keys that are present on the keyboard are known as the special character keys. इसके बारे में फर्दर हम लोग डिस्कस किए कि there are two types of keyboard. First one is QWERTY keyboard and second one is AZERTY keyboard. QWERTY keyboard क्या होता है कि वैसा कीबोर्ड जो कि जिसका जो कीबोर्ड में जो देखोगे सबसे पॉपुलर यूज होने वाला ये कीबोर्ड है, जो सबसे पॉपुलर यूज होने वाला कीबोर्ड है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन कीबोर्ड यूज इन द मॉडर्न टाइम्स। यानी कि जब देखेंगे कि हमारे कीबोर्ड में जो सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स में देखेंगे QWERTY लिखा रहता है, मीन्स उस ऐसे कीबोर्ड को हम क्या बोलते हैं, QWERTY कीबोर्ड को QWERTY लेआउट बोलते हैं। ये सबसे ज़्यादा यूज होता है और इतना ज़्यादा यूज होता है कि लोग जो कॉमन पीपल होते हैं वो ऐसा समझते हैं कि दुनिया में सिर्फ ये एक ही तरह का QWERTY कीबोर्ड यूज होता है, अदर कीबोर्ड अदर लेआउट यूज नहीं होता है। लेकिन जो दूसरा यूज होता है फ्रांस, यूरोपियन कंट्रीज में मैक्सिमम, दैट आर AZERTY कीबोर्ड। इट इज़ द फ्रेंच कीबोर्ड डेवलप्ड एज एन अल्टरनेटिव टू द QWERTY कीबोर्ड। इसका जो डेवलपमेंट किया गया QWERTY लेआउट के अल्टरनेटिव के रूप में फ्रांस में यूज किया गया। ठीक है, इसे उसी जैसे QWERTY में जो अपर अल्फ़ाबेट्स होता है QWERTY, सेम AZERTY कीबोर्ड में क्या होता है, जो सबसे पहला रो होता है उसमें AZERTY होता है। ठीक है, अब आते हैं हम सेकेंड इनपुट डिवाइस पर। सेकेंड इनपुट डिवाइस दैट इज माउस। अ माउस इज यूज्ड एज अ पॉइंटिंग डिवाइस। इट इज मेनली यूज्ड टू सेलेक्ट एंड डिसेलेक्ट आइकन्स, फाइल्स, फोल्डर्स इन द कंप्यूटर सिस्टम। इट हैज 3 buttons, लेफ्ट बटन, स्क्रॉल बटन एंड राइट बटन। लेफ्ट बटन क्या होता है, लेफ्ट बटन से हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी आइकन को पॉइंट आउट करना है, किसी फाइल को पॉइंट आउट करना है, किसी फोल्डर को पॉइंट आउट करना है, वी प्रेस लेफ्ट बटन। स्क्रॉल बटन किस लिए यूज होता है, टू मूव द डॉक्यूमेंट अप एंड डाउन, स्क्रॉल बार्स यूज होते हैं। एंड राइट बटन क्या होता है, राइट बटन यूज होते हैं टू गेट द ऑप्शंस ऑफ दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स और फोल्डर्स। दिस 3 buttons आर मेनली अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर माउस। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ माउस के बारे में डिस्कस करें। 10 मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ माउस होते हैं मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस, कॉर्डलेस एंड वायरलेस माउस। मैकेनिकल माउस क्या होता है, टू ट्रैक इट्स मूवमेंट अ मैकेनिकल माउस कंटेन्स अ सिस्टम ऑफ सेवरल रोलर्स एंड वन बॉल। It is corded type of mouse that can give you high performance. However, they have a shortcoming that they require regular cleaning because of the dust that enters inside the mechanics. Computer to track the movement, a mechanical mouse contains a system of several rollers
एंड वन बॉल। इसमें क्या होता है कि बहुत सेवरल रोलर्स होते हैं और एक बॉल होता है। इट इज कोडेड टाइप ऑफ माउस दैट कैन गिव यू अ हाई परफॉर्मेंस, हाउएवर दे हैव शॉर्टकमिंग्स, इसके कुछ घाटे भी हैं एंड दे रिक्वायर रेगुलर, इसको क्या होता है, इसको रेगुलर साफ करने की जरूरत होती है। ऑप्टिकल माउस, इट टेक्स द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर द मूवमेंट ऑफ ट्रैकिंग, इट रिक्वायर्स लेस मेंटेनेंस देन अ मैकेनिकल mouse and it is also more reliable than them, but it is also not sort of weakness, the surface over which it is operated affects its performance। जैसे मान लो कि किसी खुदरा सरफेस पर अगर हम इसको यूज करते हैं तो रेगुलर यूज में जैसे माउस, ऑप्टिकल माउस यूज होता है उस तरह से ये काम नहीं कर पाता है। ओके, on the other hand, light may wrongly reflect by the glossy surface causing tracking issues, hence the best result non glossy plain mouse mat should be used। ऑप्टिकल माउस के लिए देखेंगे एक माउस पैड आता है जिसमें एकदम प्लेन रहता है और आसानी से उसमें मूवमेंट ऑफ द माउस किया जा सकता है। तीसरा है कॉर्डलेस एंड वायरलेस माउस, मतलब कि इस माउस को इट इज अ वाइड ऑफ केबल एंड फॉर कंट्रोलिंग द कर्सर मूवमेंट it uses wireless technology such as radio और IRDA, इंफ्रारेड और रेडियो वेव यूज करता है मूवमेंट ऑफ द माउस के लिए। इसमें किसी तरह का भी वायर से कनेक्टेड नहीं किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम को। इट इज जनरली बॉट एंड यूज टू एनहेंस द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विथ माउस। बैटरीज आर रिक्वायर्ड बाई इट फॉर पावर सप्लाई। देखेंगे जो कॉर्डलेस माउस होता है, जो वायरलेस माउस होता है, उसमें किसी तरह का भी वायर नहीं होता है, केबल नहीं होता है टू कनेक्ट इन द कंप्यूटर सिस्टम। इसको कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए रेडियो वेव या इंफ्रारेड वेव का यूज किया जाता है, ठीक है। और इसमें पावर सप्लाई रन कराने के लिए बैटरीज का यूज किया जाता है। ओके, नाउ थर्ड इनपुट डिवाइस इज स्कैनर। स्कैनर क्या होता है? उस तरह के हार्ड कॉपीज जो कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्ट कॉपी के रूप में इंटर किया जाता है और जो डिवाइस हेल्प करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्कैनर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक हार्ड कॉपी है, होता है हार्ड कॉपी है, उसको हमको कंप्यूटर सिस्टम में सेव करना है। हाउ विल यू सेव दैट हार्ड कॉपी इनटू योर कंप्यूटर सिस्टम? टू सेव दैट पर्टिकुलर हार्ड कॉपी इन योर कंप्यूटर सिस्टम यू मस्ट यूज स्कैनर। स्कैनर क्या होता है? स्कैनर कन्वर्ट्स हार्ड कॉपी इनटू द सॉफ्ट कॉपी। नाउ व्हाट इज हार्ड कॉपी एंड व्हाट इज सॉफ्ट कॉपी? अगर हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में बात करें तो हार्ड कॉपी क्या होता है? जो प्रिंटेड फॉर्म ऑफ द डॉक्यूमेंट्स होते हैं दे आर नोन एज द हार्ड कॉपी एंड द डॉक्यूमेंट सेव्ड इन द कंप्यूटर सिस्टम आर नोन एज द सॉफ्ट कॉपी। ओके, नाउ लेट अस कम टू द पॉइंट। स्कैनर, पेजेस ऑफ टेक्स्ट एंड पिक्चर्स आर यूज्ड बाय इट एज एन इनपुट डिवाइस। इट हेल्प्स टू स्कैन अ डॉक्यूमेंट और पिक्चर। किसी तरह के भी डॉक्यूमेंट्स और पिक्चर्स को अगर हमको स्कैन करना है, किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट और पिक्चर को हमको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना है, वी कैन यूज स्कैनर। द डॉक्यूमेंट और पिक्चर्स स्कैन आर कन्वर्टेड बाई इट इनटू डिजिटल फॉर्मेट एंड दे आर एग्जिबिटेड ऑन द स्क्रीन एज आउटपुट। टू कन्वर्ट इमेजेस इनटू डिजिटल वंस इट यूजेस ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन टेक्निक, OCR. Some common types of scanners are flatbed scanner, handheld scanner and drum scanner. Now, what are the flatbed, handheld and drum scanner? Flatbed क्या होता है? It contains a glass pan and moving optical CIS or CCD arrays. First, the pan is illuminated by the light and then image is put into the glass pan. क्या होता है कि the light scans the document by moving across the glass pan and through this process it produces the digital version of the image. For scanning transparent slides you need a transparency adapter. ये क्या होता है? फ्लैटबेड में एक ग्लास पेन होता है, कल CIS और CCD एरे होता है। क्या किया जाता है कि डॉक्यूमेंट को उसमें रखा जाता है, वो क्या करता है? लाइट स्कैन करता है और हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको क्या करता है? हार्ड कॉपी में डिजिटल फॉर्मेट में हमारे कंप्यूटर सिस्टम में हमारे डॉक्यूमेंट्स को क्या करता है? उसको सेव कर देता है। ओके, हैंडहेल्ड, ये जनरली क्या होता है? छोटा होता है साइज में। द डिवाइस यूज्ड बाई हेल्ड बाई हैंड एंड रोल्ड ओवर अ फ्लैट इमेज दैट इज टू बी स्कैन्ड। जैसे यहाँ पे तीनों का डायग्राम दिया गया है। ये हो गया आपका फ्लैटबेड स्कैनर। इसके अंदर में जैसे भी हम डॉक्यूमेंट डालेंगे लाइट ट्रांसपेरेंस लाइट क्या हो जाएगा? मूव करते रहेगा एंड दे विल स्कैन द
documents or pictures you will enter into the and convert it into the digital format. इसको स्कैन करने के लिए हैंडहेल्ड स्कैनर क्या होता है, जनरली एक बारकोड रीडर की तरह होता है, जिसको हम कंप्यूटर सिस्टम में हम क्या करते हैं, उसको हैंडहेल्ड स्कैनर को किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर में फ्लैश करते हैं और वो क्या करता है, हमारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर देता है और कन्वर्ट कर देता है किसमें, डिजिटल फॉर्मेट में. तीसरा क्या होता है, ड्रम स्कैनर. इट कंटेन्स अ फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब फॉर स्कैनिंग इमेजेस. Unlike flatbed scanner, it does not contain a charge coupled device. The photomultiplier tube, that is PMT, is extremely sensitive to light. The glass tube used as platform for the image to be placed upon. Then the light moves throughout the images, producing a reflection of the image. The image is captured and then processed by the PMT. Since these scanners have a high resolution, they are suitable for the detailed scan. ड्रम स्कैनर क्या होता है कि एक फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब क्या करता है, इसके पास में रहता है इमेजेस को स्कैन करने के लिए. फ्लैट मेट के जैसे ये क्या करता है, इट डज नॉट कंटेन अ चार्ज कपल डिवाइस. किसी तरह का चार्ज कपल डिवाइस ये कंटेन नहीं करता है. द पीएमटी इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू लाइट. जो सेंसिटिव मतलब कि वो लाइट के अकॉर्डिंग रहता है. द ग्लास ट्यूब इज यूज्ड एज प्लेटफॉर्म फॉर द इमेज ऑफ द प्लेस. देन द लाइट मूव्स थ्रू आउट द image, producing a reflection of the image. The image is captured and then processed by the PMT. These scanners have a high resolution and they are suitable for the detailed scan. उस तरह के जो स्कैनर्स होते हैं हाई रेजोल्यूशन होते हैं और जो डिटेल स्कैनर्स होते हैं उसको स्कैन करने के लिए क्या किया जाता है, ड्रम स्कैनर का यूज किया जाता है. नाउ जॉयस्टिक. जस्ट लाइक माउस, जॉयस्टिक ऑल्सो अ पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस. मतलब कि जॉयस्टिक जो मेनली यूज होता है गेम्स में यूज होता है, गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक का यूज करता है. इट हैज अ स्फेरिकल बेस एंड इज मेड अप ऑफ स्टिक्स. अ सॉकेट इज यूज टू फिट द बेस इन हैंड्स अलाउ. लाइक अ माउस, अ जॉयस्टिक इज ऑल्सो अ पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस. इट हैज अ स्फेरिकल बेस एंड इज मेड अप ऑफ स्टिक्स. अ सॉकेट इज यूज टू फिट द बेस इन इट हैंड्स अलाउिंग the stick to move freely. The pointer or cursor on the screen is controlled by the movement of the stick. It is mainly used to play video games. joystick mainly क्या किया जाता है, वीडियो गेम्स प्ले करने के लिए होता है. लाइट पेन. लाइट पेन क्या होता है, इट इज इनपुट डिवाइस हैविंग एन आइडेंटिकल लुक इनटू अ पेन. ये पेन की तरह होता है, इनटू पेन. देयर इज अ लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ द light pen that allows the user to select a point to objects on the display screen. See, this is the light pen. Okay, हम क्या करते हैं कि जैसे हम किसी एक इसका डिवाइस आता है, इस पर हम जैसे जैसे अपने पेन को मूवमेंट करा रहा है, पेन का मूवमेंट कराते हैं, वैसे से देखिएगा आप लोग. इस पर हम इसके हेल्प से हम कुछ लिख भी सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कुछ भी लिख सकते हैं. ओके, तो इसके अंदर में एक सेंसिटिव डिटेक्टर होता है जो कि इसको राइट करने में हमको क्या करता है, हेल्प करता है. द ऑब्जेक्ट लोकेशन इज डिटेक्टेड बाय द लाइट सेंसिटिव टिप ऑफ द. ये जो टिप है इसके थ्रू क्या करता है, ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है और उसको आसानी से लिखा जा सकता है. ओके, इट अलाउज यू टू ड्रॉ ऑन द स्क्रीन इफ रिक्वायर्ड. अराउंड 1955 द फर्स्ट लाइट पेन वाज इन्वेंटेड एट द Massachusetts Institute of Technology, that is MIT, as part of the Whirlwind project. It is no longer in use since it isn't compatible with LCD screen. हालांकि अभी जो होता है इसको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यूज किया जा रहा है लाइट पेन को. माइक्रोफोन. माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस जो क्या करता है, साउंड वाइब्रेशन रिसीव कन्वर्ट करना, ऑडियो सिग्नल को क्या करता है, रिकॉर्ड करने के काम में यूज किया जाता है. ओके, उसी तरह से ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है. ऑप्टिकल मार्क रीडर का तो AMR शीट होता है जो कंप्यूटर सिस्टम में, जैसे कोई एग्जामिनेशन होना होता है, आजकल देखेंगे कि हर एग्जामिनेशन क्या हो रहा है, OMR शीट पे होता है. कोई भी एग्जाम होता है उसको OMR शीट पे होता है. उस OMR शीट को रीड करने के लिए क्या कहते हैं, OMR मशीन का यूज किया जाता है. ओके, ऑप्टिकल मार्क रीडिंग इज अ मेथड ऑफ एंटरिंग डेटा इनटू कंप्यूटर सिस्टम.
कंप्यूटर ऑप्टिकल मार्क रीडर्स रीड पेंसिल और पेन मार्क्स मेड इन प्री डिफाइंड पोजिशन ऑन पेपर फॉर्म्स एज रेस्पॉन्सिव टू क्वेश्चन और टिक लिस्ट prompts. The AMR data entry system contains the information to convert the presence or absence of marks into a computer data file. वो क्या करता है कि जैसे ही OMR क्या करता है कि जो जैसे कि एग्जामिनेशन में आप देखेंगे किसी भी सर्कल को कलर करते हैं, टिक करते हैं, उन डेटा उन कलर्ड और टिक्ड साइंस को क्या करता है, वो रीड करने का काम AMR शीट करता है. इसीलिए देखेंगे कि जितने भी बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं बहुत जल्दी से जल्दी रिजल्ट आता है. इसका जो मेन कारण है AMR मशीन होता है. MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर. MICR जो मेनली यूज होता है वो होता है बैंक्स में चेक को रीड करने के लिए. ओके, इसका ज़्यादा यूज नहीं है. मेनली जो हम हमारे बैंक में देखेंगे कि हमारे चेक पर एक कोड होता है, उस कोड को रीड करने के लिए MICR का यूज किया जाता है. जस्ट लाइक हेयर इट इज़ magnetic ink character reader. It is an input device that is designed to read the printed text into magnetic ink. It is character recognition technology that uses a special magnetized ink which is sensitive towards magnetic fields. The banks uses it to process the checks, and some other organization also use it where security is a major issue. It has the capacity of processing 300 checks in 1 minute, that too with 100% accuracy. मतलब कि एक साथ हम 300 चेक को बिना किसी गलती किए हुए प्रोसेस कर सकते हैं. द मैग्नेटिक इंक इज यूज टू राइट MICR नंबर गिवन एट द बॉटम ऑफ द चेक. फॉर प्रिंटिंग द मैग्नेटिक इंक अ लेजर प्रिंटर accompanied by the MICR toner can be used. The details are read by the device and sent to the computer for processing. Before magnetic information is translated into characters, the documents printed in magnetic ink must pass through a machine that magnetized the ink. मतलब कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है. इसको हम लोग रिकॉग्निशन भी बोलते हैं या रीडर भी बोलते हैं. वो क्या करते हैं, जो हमारे बैंक में जो बॉटम में नंबर्स होते हैं MICR कोड, जो कोड होते हैं उन कोड को 100% एक्यूरेसी के साथ रीड करता है और उस डेटा को रीड करने के बाद से कंप्यूटर में इंटर करता है टू प्रोसेस दैट पर्टिकुलर code. Okay, so that it can be cleared. For the clearance of the check, we simply can say magnetic ink character reader is used. Okay, now the next one is optical character reader. Optical character reader क्या होता है कि जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, स्कैन्ड कॉपी को it is in a way that it convert the scanned images of typed, printed or handwritten text into digital text. जैसे किसी भी तरह का टाइप्ड इमेज हो, प्रिंटेड इमेज हो, किसी भी तरह का हैंडरिटन इमेज हो, उसको क्या करता है, डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए OCR का यूज किया जाता है. जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक इमेज है, उसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है. उन टेक्स्ट को अगर हमको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो OCR का यूज किया जा सकता है. आजकल हर जगह लगभग बहुत जगह यूज किया जा रहा है OCR का. इट इज़ वाइडली यूज इन लाइब्रेरीज एंड ऑफिसेज फॉर कन्वर्टिंग फिजिकल डॉक्यूमेंट्स एंड बुक्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स. जैसे लाइब्रेरीज या इट इज़ वाइडली यूज इन लाइब्रेरीज एंड ऑफिस. बहुत सारे ऑफिस में, बहुत सारे लाइब्रेरीज में इसको क्या किया जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज किया जा रहा है टू कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर बुक्स और दैट पर्टिकुलर फाइल्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स में. एक हार्ड कॉपी का फाइल है, उस इमेज को कन्वर्ट, उसके रिटन टेक्स्ट को इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का यूज किया जाता है. It uses a scanner to process and copy the physical form of document. एक स्कैनर यूज करता है, इसमें क्या करता है, उसको फिजिकल फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट का, आफ्टर इट कॉपीज द डॉक्यूमेंट दे आर कन्वर्टेड बाय द OCR सॉफ्टवेयर इनटू 2 कलर ब्लैक एंड व्हाइट वर्जन कॉल्ड बिटमैप. बिटमैप के रूप में उसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है. इन द नेक्स्ट स्टेप इट इज एनालाइज्ड फॉर द डार्क एंड लाइट एरियाज वेयर लाइट एरिया सेलेक्टेड एज बैकग्राउंड एंड द डार्क एरियाज आर आइडेंटिफाइड एज द कैरेक्टर्स. इसमें क्या किया जाता है, जैसे ही हम इसको कन्वर्ट करते हैं किसी भी इमेज को टेक्स्ट के फॉर्म में, तो 2 कलर के रूप में इसको ब्लैक एंड वाइट वर्जन के रूप में बिटमैप के रूप में यूज होता है. जो वाइट कलर होता है उसको बैकग्राउंड के रूप में यूज किया जाता है और जो डार्क एरियाज होता है वो कैरेक्टर्स के रूप में. एंड दिस इनपुट डिवाइस इज यूज्ड टू कन्वर्ट द हार्ड कॉपीज ऑफ हिस्टोरिक एंड लीगल डॉक्यूमेंट्स इनटू PDFs.
ये क्या किया जाता है, इस इनपुट डिवाइस को हम लोग बेसिकली यूज किया जा सकता है किसमें, हिस्टोरिक एंड लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है उसको PDF बनाने के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े कि इस डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए, तो हम लोग इसको MS ऑफिस, MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स में क्या कर सकते हैं, सेव करके इसको एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है। नाउ तो अभी हम लोग इनपुट डिवाइस में क्या क्या देखें, इनपुट डिवाइस में देखें कि इनपुट डिवाइस क्या होता है। इनपुट क्या होता है, कोई भी डेटा एंड इंफॉर्मेशन जब हम कंप्यूटर सिस्टम में इंटर करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं। एंड जो डिवाइस हमको डेटा और कंप्यूटर डेटा और इंफॉर्मेशन को हमारे कंप्यूटर सिस्टम में इंटर करने के लिए हेल्प करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस बोलते हैं। इनपुट डिवाइस बहुत तरह के होते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, आपका लाइट पेन हो गया, जॉयस्टिक हो गया, OMR हो गया, OCR हो गया, MICR हो गया। दिस ऑल आर द टाइप्स ऑफ दिस ऑल आर द मोस्ट पॉपुलर यूज्ड इनपुट डिवाइसेस इन द कंप्यूटर सिस्टम। ओके। नाउ द नेक्स्ट हार्डवेयर डिवाइस इज प्रोसेसिंग डिवाइस, CPU. इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये कंप्यूटर सिस्टम का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट होता है। दिस डिवाइस इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। मतलब कि हम कंप्यूटर सिस्टम में जो कुछ भी इंटर करते हैं, जो कुछ भी कंप्यूटर सिस्टम में एक यूजर इंटर करता है विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस, उन इनपुट डिवाइसेस को प्रोसेस करने का काम, उस इनपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करने का काम, उस इनपुट डिवाइस को लॉजिकली सॉल्व करने का काम आपका CPU करता है। ओके। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग फीचर। इट इज कंसिडर्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। It performs all types of data processing operation. मतलब कि whatever data you enter into the computer system, that all the data is processed by the CPU. It stores data, intermediate results and instructions. It controls the operation of all parts of the computer system. हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी पार्ट्स होते हैं उन सभी का कंट्रोलिंग पावर किसके हाथ में होता है, CPU के हाथ में होता है। CPU itself has the following 3 components: memory unit और storage unit, control unit and ALU. Okay. ये 3 पार्ट होते हैं आपके CPU में। मेमोरी यूनिट क्या होता है, दिस यूनिट कैन स्टोर इंस्ट्रक्शन, डेटा एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट। मतलब कि जो कंप्यूटर सिस्टम में हम इनपुट करते हैं उस इनपुट को सेव करने का काम, उस इनपुट को स्टोर करने का काम स्टोरेज यूनिट करता है। दिस यूनिट सप्लाइज इंफॉर्मेशन टू अदर यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर व्हेन नीडेड। इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरनल स्टोरेज यूनिट और मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, जैसे रैम एंड रोम। RAM and ROM are the main memory of the computer system. About RAM and ROM, I will be discussed when I will discuss the storage device of the computer system. Its size affects speed, power and capability. Primary memory and secondary memory are 2 types of memories in the computer system. Function of the memory units पर क्या क्या फंक्शन होता है, क्या करता है, हमारे जितने भी कंप्यूटर सिस्टम में हमारे डेटा होता है उन डेटा को सेव करने का काम हमारा मेमोरी यूनिट करता है। ये क्या करता है, इंटरमीडिएट रिजल्ट जो प्रोसेसिंग के टाइम में होता है उसको भी सेव करने का काम हमारा क्या करता है, हमारा CPU करता है, मेमोरी यूनिट करता है। इट स्टोर्स द फाइनल रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग बिफोर द रिजल्ट्स आर रिलीज्ड टू एन इनपुट डिवाइस। वो क्या करता है, जो फाइनल रिजल्ट होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, मान लो कि हम 3 + 4 = 7, 3 + 4 = 7। तो ये 3 + 4 ये प्रोसेस होने के बाद ये रिजल्ट देने से पहले भी ये क्या करता है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में इसको स्टोर करता है। ठीक है, स्टोर करता है। तो मेमोरी यूनिट्स का सबसे मेन काम क्या होता है कि व्हाट एवर द वर्क डन बाय अ यूजर इनटू द कंप्यूटर सिस्टम, व्हाट एवर द डेटा प्रोसेस्ड बाय CPU in the computer system, it stores all the data and information during the execution of the result and after the release of the result. Okay, now कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि जितने भी डेटा एंड इन्फॉर्मेशन का मूवमेंट होता है कंप्यूटर के अंदर, उन सभी के सभी डेटा और इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम होता है। जस्ट सी हियर, दिस यूनिट कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर बट डज नॉट कैरी आउट actual data processing operation. Function of these units are: it is responsible for controlling the transfer of data and instruction among other units of a
computer. It manages and coordinates all units of the computer system. It contains the instruction from the memory, interprets them and directs the operation of the computer. It communicates with input device, output device for the transfer of data or result from storage. It does not process or store data. ये क्या करता है, किसी तरह का डेटा को प्रोसेस या स्टोर नहीं करता है, बल्कि उन डेटा और इंफॉर्मेशन को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम ये कंट्रोल यूनिट करता है कंप्यूटर सिस्टम में. अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ALU जो थर्ड कंपोनेंट है CPU का, इसमें दो सेक्शन होते हैं, एक होता है अर्थमेटिक सेक्शन एंड दूसरा होता है लॉजिक सेक्शन. अर्थमेटिक सेक्शन क्या होता है कि फंक्शन ऑफ अर्थमेटिक सेक्शन इज टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन like addition, subtraction, multiplication and division. All complex operations are done by making repetitive use of the above operation. जैसे कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में अगर हमको एडिशन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, डिवीजन करना हो या किसी भी तरह का कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन करना हो, तो उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने का काम कौन करता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन करता है. लॉजिकल सेक्शन क्या करता है कि जितने भी कंप्यूटर सिस्टम में वो कंपेयर करने का काम करता है. फंक्शन ऑफ लॉजिक सेक्शन इज टू परफॉर्म लॉजिक ऑपरेशन सच एज कंपेयरिंग, सेलेक्टिंग, मैचिंग एंड मर्जिंग ऑफ द डेटा. इन कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को कंपेयर करने का, डेटा को सेलेक्ट करने का, डेटा को मैच कराने का एंड डेटा को मर्ज करने का, मर्ज मतलब जोड़ने का काम लॉजिक सेक्शन ऑफ द ALU करता है. मतलब दो तरह के सेक्शन होते हैं, लॉजिक सेक्शन एंड अर्थमेटिक सेक्शन. अर्थमेटिक सेक्शन क्या करता है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड अदर टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन व्हाट एवर इट विल बी दैट विल बी परफॉर्म इन द अर्थमेटिक सेक्शन ऑफ द ALU. एंड लॉजिक सेक्शन क्या करता है, उन सभी डेटा को कंपेयर करता है, सेलेक्ट करता है, मैच करता है और मर्ज करने का काम लॉजिक सेक्शन करता है. ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट कंटेन्स इन द CPU इज मदरबोर्ड. मदरबोर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्किट बोर्ड भी बोलते हैं. ओके, सर्किट बोर्ड बोलते हैं. द मदरबोर्ड सर्व एज ए सिंगल प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर्स टुगेदर. मतलब कि कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको कनेक्ट कराने का काम क्या कौन करता है, मदरबोर्ड करता है. इट कंटेन्स द CPU, मेमोरी, हार्ड ड्राइव, ऑप्टिकल ड्राइव, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड एंड अदर पोर्ट्स एंड एक्सपेंशन कार्ड्स डायरेक्टली और वाया केबल. इट कैन कंसिडर एज द बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. मतलब कि कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी कार्ड्स होते हैं, जैसे कितने भी साउंड कार्ड होते हैं, जितने भी मेमोरी कार्ड्स होते हैं, जितने भी आपका वीडियो कार्ड्स होते हैं, इन सभी को क्या करता है, एक कोड प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी तरह का पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करने का काम कर सकते हैं. अब आते हैं हम पेरिफेरल डिवाइसेस. पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होता है, PERIPHERAL, पेरिफेरल डिवाइसेस. अब ये डिवाइसेस क्या होता है, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे इनपुट डिवाइस, प्रोसेस डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, उसी तरह से एक पेरिफेरल डिवाइस होता है. पेरिफेरल डिवाइस उस तरह के डिवाइस होता है जो कंप्यूटर सिस्टम में एक्सटर्नली USB केबल के थ्रू या किसी भी एक्सटर्नली कनेक्ट किए जा सकते हैं. मतलब कि दोज डिवाइस विच कैन बी कनेक्टेड टू द कंप्यूटर सिस्टम आर नोन एज द पेरिफेरल डिवाइसेस. एग्जाम्पल आपका क्या होता है, कीबोर्ड, इसको हम लोग पेरिफेरल डिवाइसेस बोल सकते हैं. माउस, इसको हम लोग पेरिफेरल डिवाइसेस बोल सकते हैं. प्रिंटर, इसको हम लोग पेरिफेरल डिवाइसेस बोल सकते हैं. स्कैनर, इसको हम लोग पेरिफेरल डिवाइसेस बोल सकते हैं. मतलब कि उस तरह के डिवाइसेस जो कंप्यूटर सिस्टम में कनेक्ट किया जा सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस बोलते हैं. नाउ फीचर्स ऑफ द मदरबोर्ड. अ मदरबोर्ड कम्स विद द फॉलोइंग फीचर्स. Motherboard varies greatly in supporting various components of the component. Motherboard supports a single type of CPU and few types of memories. Video cards, hard disk, sound have to be compatible with the motherboard to function properly. जो भी वीडियो कार्ड हम यूज कर रहे हैं, जो भी हार्ड डिस्क यूज कर रहे हैं, जो भी साउंड कार्ड्स यूज कर रहे हैं, दे मस्ट बी कंपेटिबल विद द मदरबोर्ड टू वर्क प्रॉपरली. अगर ये कंपेटिबल नहीं रहा तो ठीक से हमारे कंप्यूटर सिस्टम में काम नहीं करेगा. मदरबोर्ड्स, केसेस एंड पावर सप्लाई मस्ट बी कंपेटिबल टू वर्क प्रॉपरली. मतलब पावर सप्लाई भी प्रॉपर मिलना चाहिए मदरबोर्ड को टू वर्क इन कंप्यूटर सिस्टम. ओके, नाउ पॉपुलर मैन्युफैक्चरर्स कौन कौन से हैं, इंटेल है, आसूस है, एओपेन है, एबिट है, बायोस्टार है, गीगाबाइट, MSI. दीज ऑल आर द पॉपुलर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द मदरबोर्ड. डिस्क्रिप्शन के बारे में अगर इसके बात करें तो the motherboard is mounted inside the case and is securely attached by a small screws
through pre-drilled holes. Motherboard contains ports to connect all the internal components. It provides a single socket or CPU where the memory normally or more slots are available. Motherboard provides ports to attach the floppy drive, hard drive and optical drives via ribbons cables. Motherboard carries fans and a special port designed for a power supply. Okay, there is a peripheral card slot in front of motherboard using which video cards, sound cards and other expansion cards can be connected to the motherboard. Basically motherboard क्या करता है कि एक जो भी हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, जो भी हमारे कंप्यूटर में एक्सटर्नल डिवाइसेस कनेक्ट किए जा सकते हैं, उन डिवाइसेस को कनेक्ट कराने का काम सिंपली कौन करता है? मदरबोर्ड करता है. ओके, अब इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्या देखें? कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम का जो सबसे पहला चीज़ देखे वो क्या था? हार्डवेयर. हार्डवेयर के बारे में बताए हम. उसके बाद से क्या कौन कौन सा हार्डवेयर यूज होता है, जैसे होता है इनपुट डिवाइस, प्रोसेस डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस. इनपुट डिवाइस में हम लोग क्या क्या देखेंगे? इनपुट क्या होता है, आउटपुट इनपुट क्या होता है, इनपुट डिवाइस क्या होता है और कौन कौन सा इनपुट डिवाइस बेसिकली यूज होता है. प्रोसेसिंग डिवाइस में हम लोग CPU देखें और मदरबोर्ड देखें. ओके, नाउ in the next video we will discuss about the output devices of the computer system and storage devices of the computer system. These both are the also most important part of the computer system. So please stay tuned for the next video. Thank you.